Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sandal College Boys Section Online Class 2nd Year. Dear students, Assalamu alaikum. Here is Akhtar Saeed, your English teacher. Today is lesson number 12, Hitchhiking Across the Sahara. It is a bit lengthy lesson, so I have divided this lengthy lesson into 4 parts. Today's lecture will cover part 1 of 4. Let's start. Hitchhiking Across the Sahara has been written by G.F. Lamb. The main points of this lengthy lesson are: number 1, Hitchhiking Across the Sahara is an exciting and thrilling adventure of Robert Christopher, who crossed the Sahara Desert by hitchhiking in 1956. Hitchhiking means पास से गुजरती हुई गाड़ियों में लिफ्ट लेके फ्री में सफ़र करना, और जब आप सहरा में ऐसा सफ़र कर रहे हों तो यकीनन ये इंतहाई मुश्किल और तकलीफ़ दे काम हो सकता है. Number 2, the Sahara Desert is the largest and hottest non-polar desert in the world that is spread over an area of 94 lakh square kilometers. Number 3, his foster mother was the reason behind this adventure. We'll discuss it in detail in the lesson. Number 4, his adventure can be divided into 7 phases. Number 1, Bausada to Gardaya. Number 2, from Gardaya to Algolia. Number 3, from Algolia to Insala. Number 4, from Insala to Tamanrasset. Number 5, from Tamanrasset to the land of thirst and death. Number 6, from the land of thirst and death to Kidal. And lastly, number 7, from Kidal to Timbuktu. Actually, he wanted to visit Timbuktu. From Bausada to Timbuktu, he covered 3,200 kilometers, a long journey in the desert. Now, dear students, this is the Sahara Desert. All this is the Sahara Desert that is spread over an area of 94 lakh square kilometers. You see here Egypt, Sudan, Libya, Algeria, Mali, etc. And you here see Saudi Arabia, Iraq, Syria, etc. And Christopher started his journey from here, Algiers. This is also called the port of Sahara. From here he came to Gardaya, Gardaya to Algolia, Algolia to Insala, Insala to, then he came here Tamanrasset. At Tamanrasset, he met his friend Professor Claude Bellingernon. Then he came to here Timbuktu. That was actually his destination. Here he thought that he should see some more land of the desert, so he came here to Agadez. From Agadez, what happened next? I want to show another map to you. This is Agadez. For example, यहाँ से उसने, ये है टमनरैसेट जो यहाँ से और यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो उसने एगाडीस में होते हुए उसने प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगरनन को एक टेलीग्राम लिखा कि मैं इधर से सफ़र करना शुरू करूँगा और आप उधर से सफ़र करना शुरू कर देना इस रूट पे. तो रास्ते में एक प्लेस थी जिसका नाम था इन एबन गैरेट, वहाँ उनकी मुलाकात हो जाएगी. अगर मैं वहाँ पहले पहुँच गया तो मैं इन एबन गैरेट पे वेट करूँगा. अगर टमनरैसेट से चलते हुए इन एबन गैरेट में प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगरनन ने मुझे यानी क्रिस्टोफर को ना पाया तो वो इसी रास्ते से आगे आता जाएगा. अब प्रॉब्लम ये हुआ, जब ये यहाँ तक पहुँचे एक कारवान के साथ, तो ऊंटों को पानी पिलाने के लिए कारवान ने जिद की कि यहाँ चूंकि इस रोड पे, इस रास्ते पे कोई कुआं नहीं था, तो उन्हें एक डी टूर करना पड़ा, लॉन्ग डी टूर. क्रिस्टोफर ने बड़ा मना किया कि वो क्लॉड बेलिंगरनन ने आना है, लेकिन उनको पानी पिलाना था. तो उन्होंने इस लंबा सा एक सफ़र तय किया. लेकिन जब यहाँ से दोबारा इस रोड पे आए, इस रास्ते पे आए, तो 2 दिन लग चुके थे. इतने में प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगरनन यहाँ से सीधे गुजर के आगे चले गए और ये क्रिस्टोफर यहाँ इन एबन गैरेट में छोड़ के, तो एक लड़का आया उनके साथ और वो वापस चला गया. ये बड़ा एक इंसिडेंट है जो हम डिटेल के साथ
साथ पढ़ेंगे कि इन एबन गैरेट में किस तरह से उसने ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ी। तो जब प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगनन एगाडीज पहुंच गए तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें किसी ने गलत गाइड किया है, तो उन्होंने सर्च पार्टीज ली और ख़ुद इन एबन गैरेट की तरफ चल पड़े और अल्टीमेटली वो सर्च पार्टीज़ भी और प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगनन भी अपनी डेजर्ट जीप में वहाँ पहुँच गए और उनको मौत के मुंह से बचा लिया और अपने साथ लेके चले गए। दिस इज़ द समरी ऑफ द होल स्टोरी। आई होप कि आपके जहन में इस पूरी स्टोरी का एक खाका बन गया होगा। अब हम लेसन शुरू करते हैं। Hitchhiking across the Sahara. In this part of the 2 paragraphs, we'll discuss 2 questions. What is the size of the Sahara and how does it compare with England? Number 2, how would you generally describe the Sahara Desert? If a giant means monster, jinn, were to pick England up and put it down in the middle of the Sahara Desert, we should have quite a task, डिफ़िकल्ट वर्क, वी शुड हैव डिफ़िकल्ट वर्क टू फाइंड इट। कि अगर कोई जिन इंग्लैंड को उठा के सहारा डेजर्ट के सेंटर में कहीं रख दे तो उसे ढूंढना एक बड़ा मुश्किल काम होगा। द फुल सहारा एरिया स्ट्रेचिंग मतलब स्प्रेडिंग, इसका सिनोनिम है। द फुल सहारा एरिया स्प्रेडिंग ऑलमोस्ट द कंप्लीट विड्थ ऑफ नॉर्थ अफ्रीका इज मैनी टाइम्स द साइज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सहारा डेजर्ट जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के साइज से कई गुना बड़ा है कि जिसको ढूंढना भी मसला हो जाएगा। आप अगर ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ द साइज ऑफ द सहारा एंड हाउ डज इट कंपेयर विद इंग्लैंड, ये लिखने के बाद आप साथ ये भी ऐड कर सकते हैं सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट एंड द हॉटेस्ट नॉन पोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड दैट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 94 lakh square kilometers. Now we move towards the second question. About half of this gigantic area, gigantic means huge, massive, immense, great, यानी बहुत बड़ा, about half of this huge area, massive area, immense area, great area is mainly under French control. ये तब जब ये ऐसे लिखा गया होगा 1962 से पहले, तो तब ये वाला एरिया फ्रेंच कंट्रोल में था। Very recently indeed, the discovery of oil beneath the sand has begun to bring changes. Obviously जब ऑयल निकल आता है तो फिर पैसा भी उसके साथ बहुत आता है, जिससे तब्दीलियां भी आती हैं। But less than 3 years ago, most of the area had for countless years, countless, numerous, बहुत ज़्यादा years, consisted of immense stretches of barren land. Immense, gigantic, huge. Immense and gigantic are synonymous to each other. I read once again. But less than 3 years ago, most of the area had for countless years consisted of immense stretches of barren sand, intensely hot during the day with few water wells and little vegetation. वहाँ नबातात वगैरह सब्जियाँ और हरियाली बहुत ही कम होती है। Large parts were almost uninhabited, deserted, unpopulated, वीरान, वहाँ कोई आबादी नहीं है, बहुत कम आबादी है। In other parts there were just a few towns very widely scattered. चंद एक टाउन्स हैं वो भी वाइडली स्कैटर्ड, बड़ी दूर दूर एक दूसरे से फैले हुए हैं। एंड ओकेजनल वॉन्डरिंग ट्राइब्स ऑफ अरब्स एंड बर्बर्स, और कभी कभार वहाँ अरब्स और बर्बर्स के जो वॉन्डरिंग ट्राइब्स हैं वो आते हैं। ओकेजनल मतलब casual. Occasional is a different color. It is included in the MDCAT vocabulary. The actual word is actually occasionally there in the MDCAT list. And wandering tribes, wandering means roaming, tribes means clan. Casual roaming clans of Arabs and Berbers, ये कभी कभार मूव करते हुए, हिजरत करते हुए एक जगह से दूसरी जगह नजर आते हैं। In these 2 paragraphs, we'll discuss 2 questions. Number 1, what do you know about Robert Christopher? Number 2, what had Christopher's foster mother to do with his desire to see distant lands? Second question is especially very important from the examination point of view. Hardly the land one would think in which to go hitchhiking. Hitchhiking means travel by taking lifts from the passing vehicles. Yet this
was just the mode of travel. Mode of travel, manner of travel that Robert Christopher, a young American, decided to adopt in the Sahara crossing, which he began in 1956. So this is the complete description of who Robert Christopher was. Now from here the second question starts. When he was child, I mean when Robert Christopher was a child, every time he was naughty. He was very naughty in his childhood, like obviously you people. His foster mother means stepmother, used to threaten him. थ्रेटन मीन्स वॉर्न, धमकी देती थी, डराती थी, जैसे हम बच्चों को डराते हैं कि पता नहीं जिन आ जाएगा तो आपको उठा के ले जाएगा, आप सो जाएं, माएँ बच्चों को डराती हैं। तो वो भी जब कभी ये शरारतें करता तो इसकी फोस्टर मदर भी इसको डराया करती थी। यूज टू थ्रेटन टू सेंड हिम टू टिम्बकटू, कि वो उसे टिम्बकटू भेज देगी, इसलिए वो शरारतें ना करें। ये टिम्बकटू कहाँ है? एन एंशंट सिटी इन द हार्ट ऑफ फ्रेंच अफ्रीका। वो अफ्रीका जो फ्रेंच के कंट्रोल में था, तो वहाँ एक जो बहुत ही पुराना शहर है, तो वहाँ उसे भेज देगी। डराने के लिए कहा करती थी, लेकिन शायद वो डरने की बजाय उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो ये जगह ज़रूर देखे। इंस्टेड ऑफ अलार्मिंग, alarming means frightening, instead of frightening him, the idea aroused in him, aroused, awakened, provoked, उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो गई। the idea awakened in him, the idea provoked in him a keen desire to see this distant land. distant means remote, फार ऑफ, कि ये जो दूर दराज वाली जगह जिसके बारे में उसकी मामा उसको कहती हैं वो ज़रूर देखेगा। उसके दिल में बजाय खौफ पैदा होने के एक ख्वाहिश पैदा होगी कि वो उस जगह ज़रूर जाएगा। In these two paragraphs, we'll discuss two questions. Number one, what was Christopher's first adventure and how much did it cost him? An important question, I must say. Number two, from where did Christopher start his adventure? This question can be asked in two ways. Why is Bausada called the port of the Sahara? Second question is rather more important than the first one. By the time he was a young man, he was firmly gripped. Firmly, strongly, gripped मीन्स ग्रैस्प्ड। जब वो एक नौजवान था तो एक ख्याल ने बड़ी मजबूती से उसको ग्रिप कर लिया, जकड़ लिया, बाय द वॉन्डरलस्ट। वॉन्डरलस्ट मीन डिज़ायर टू ट्रैवल। कुछ लोगों में सफ़र करने की बड़ी आदत होती है, उनकी ख्वाहिश होती है। तो ये जो यंग मैन था क्रिस्टोफर, रॉबर्ट क्रिस्टोफर, उसके दिल में भी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो सफ़र करे। हिज फर्स्ट एडवेंचर, एडवेंचर मीन्स वेंचर, एक्सपेडिशन, मुहिम। हिज फर्स्ट venture, his first expedition was to go around the world at the cost of $80. $80 में उसने दुनिया का सफ़र किया। अबाउट 28 पाउंड्स, जो पाउंड्स में जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो कोई 28 पाउंड बनते थे। आफ्टर दिस ही डिटर्मन्ड, डिटर्मन्ड मीन्स डिसाइडेड, पक्का इरादा कर लिया दैट हिज नेक्स्ट जर्नी शुड बी टू ट्रैवल राइट अक्रॉस द सहारा फ्रॉम एल्जियर्स। वो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि एल्जियर्स, जिसको अलजायर कहते हैं, तो वहाँ से उसने सफ़र शुरू किया। ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू टिम्बकटू, वो नॉर्थ कोस्ट ऑफ अफ्रीका के साथ साथ वो टिम्बकटू उसने पहुंचना था। अब टिम्बकटू कहाँ है, मैंने आपको वैसे मैप की मदद से भी दिखाने की कोशिश की है। विच इज़ नियर द रिवर नाइजर इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द ग्रेट डेजर्ट। जो उस ग्रेट डेजर्ट के एक्सट्रीम साउथ में है रिवर नाइजर, उसके पास है ये टिम्बकटू। ये उसकी फाइनल डेस्टिनेशन थी। फ्रॉम वेयर डिड क्रिस्टोफर स्टार्ट हिज जर्नी? Why is Bausada called the port of the Sahara? The Trans-Sahara journey, सहारा के पार जाने का सफ़र, began at a little town Bausada, known to the natives. नेटिव्स कहते हैं लोकल्स को, मुकामी आबादी को, मुकामी लोगों को। आपको इसका कलर डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, ये भी आपकी एमडी कैट वोकैबुलरी में शामिल है। इसके भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हासिल कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। वैसे मैंने भी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में पूरे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए हुए हैं।
The Trans-Sahara journey began at a little town Bausada, known to the natives as the Port of Sahara, जिसे सहारा की बंदरगाह कहा जाता है. For it is here that the desert really starts. चूँकि यहाँ से असल डेजर्ट जो है वो स्टार्ट होता है. जैसे समंदर के किनारे को हम पोर्ट कहते हैं, तो उन्होंने इस सहारा को, डेजर्ट को समंदर लिया और ये जो बाउसाडा था इसको उन्होंने फिर पोर्ट कहना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ से असल जो सहारा डेजर्ट था वो शुरू होता था. क्रिस्टोफर डिस्कवर्ड दैट अ डेजर्ट ट्रक वॉज लीविंग फॉर द साउथ शॉर्टली एंड ही अरेंज्ड विद द ड्राइवर टू बी गिवन अ लिफ्ट एज फार एज इट वेंट. तो उसने ड्राइवर से ये अरेंज कर लिया, उसको किसी तरह मना लिया कि जितनी दूर तक उन्होंने जाना है तो वो क्रिस्टोफर को भी अपने साथ ले जाएं. Dear students, here are two paragraphs and we'll discuss two questions, one for each. Number one, what were the conditions of the weather when they started their journey? Number two, how did Christopher manage to get a seat in the weapons carrier? Question number two is rather very much important from the examination point of view. The conditions were agonizing. Agonizing means very painful. गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बड़ी तकलीफ दे मौसम था. 3 men, I mean driver, greaser and passenger. Passenger is Christopher himself. Seat side by side in the front seat, traveling at a bare 32 kilometers an hour. गाड़ी में 32 किलोमीटर्स की बहुत ही स्लो स्पीड के साथ वो सफ़र कर रहे थे. एक्चुअली सहारा में जहाँ रेत ही रेत हो हर तरफ, कोई पक्का रास्ता ना हो, तो वहाँ सफ़र करना इंतहाई मुश्किल होता है. While the temperature rose steadily. Steadily means gradually, slowly, आहिस्ता आहिस्ता. While the temperature rose gradually, while the temperature rose slowly, in 2 hours a flask of cold water became hot enough to make tea. इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि वो जिस फ्लास्क में ठंडा पानी लिया हुआ था उन्होंने, वो 2 घंटों में इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि उससे चाय भी बनाई जा सकती थी. आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर सख्त गर्मी थी. Presently means जल्द ही, soon. A fast moving weapons carrier. यहाँ से हम second question start करेंगे. बेटा, this is one of the most important question from this lesson as well as from the examination point of view. Presently, a fast moving weapons carrier overtook them. Christopher stopped it and begged the lieutenant in charge. Begged means requested. एंड रिक्वेस्टेड द लेफ्टिनेंट. लेफ्टिनेंट को आप लेफ्टिनेंट भी पढ़ सकते हैं और लेफ्टिनेंट भी पढ़ सकते हैं. रिक्वेस्टेड द लेफ्टिनेंट इन चार्ज टू रिलीव हिम, टू रेस्क्यू हिम, टू फ्री हिम, कि उसकी जान छुड़ाए. फ्रॉम द मिजरी ऑफ स्लोली बेकिंग टू डेथ, कि वो इतनी ज़्यादा गर्मी है उसे लगता है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे बेक होके मर जाएगा. एट 20 miles an hour, कि जिसकी स्पीड सिर्फ 20 माइल्स थी. आप कहेंगे इधर तो 32 लिखा है, लेकिन बेटा यहाँ 32 किलोमीटर्स लिखा है. दैट इज इक्वल टू 20 माइल्स. द लेफ्टिनेंट पॉइंटेड आउट दैट स्ट्रिक्ट मिलिट्री regulations mean उसूलो ज़वाबत, कानून, रूल्स. फॉरबेड मीन्स मना करते हैं, रोकते हैं. बैंड, प्रिवेंट द कैरियंग ऑफ सिविलियंस, कि वो आम लोगों को नहीं लेके जा सकते. आर्मी की गाड़ी में आम जो सिविलियंस होते हैं उनको बैठने की इजाज़त नहीं होती. तो क्रिस्टोफर ने क्या किया? क्रिस्टोफर रिप्लाइड बाय प्रोड्यूसिंग अ परमिट फ्रॉम द वॉर मिनिस्ट्री. उसके पास वॉर मिनिस्ट्री की तरफ से एक लेटर था, गिविंग हिम परमिशन टू ज्वाइन द फ्रेंच फॉरेन लीजन, कि फ्रेंच फॉरेन लीजन में वो शमूलियत इख्तियार कर सकता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड इन ऑर्डर टू कलेक्ट मटीरियल फॉर एन आर्टिकल, कि एक आर्टिकल में उसको कुछ मवाद की ज़रूरत है, मटीरियल की ज़रूरत है, तो उनको ये इजाज़त मिली थी अपने वॉर मिनिस्ट्री की तरफ से कि वो उनमें शामिल हो सकता है. द परमिशन हैड लेटर बीन विदड्रॉन मीन्स टेकन बैक. वो जो परमिशन थी वो लेटर बाद में कैंसिल हो चुका था. बट फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, लकीली द लेफ्टिनेंट डिड नॉट टर्न द पेपर ओवर एंड सी द कैंसल्ड स्टेप.
उसकी बैग पे कैंसल स्टैंप लगी हुई थी, बट लकीली ये क्रिस्टोफर की खुशकिस्मती है कि उस लेफ्टिनेंट इंचार्ज ने उस कैंसल्ड स्टैंप को नहीं देखा और उसे अपने साथ बिठा लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है और याद करना है। In this part of the paragraphs, we'll discuss one question, and very important question I say in the beginning. What was the most noticeable feature of the desert city named Gardaya? Or this question can be asked in two ways. What did Christopher state about the flies in the desert city named Gardaya? आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ मक्खियाँ बहुत ज़्यादा थीं। आपने गर्दाया को मक्खियों के हवाले से, फ्लाइज के हवाले से याद रखना है कि वहाँ फ्लाइज बेशुमार थीं। He was dropped at the town of Gardaya, a typical desert city, typical representative, जो ख़ास किस्म का, जो एक नुमाइंदा डेजर्ट सिटी था, सहराई शहर था, except that the flies are even more numerous, कि वहाँ मक्खियाँ बहुत ज़्यादा थीं, and stickier, stickier means adhesive, एडहीसिव मीन चिपकने वाली थी। मक्खियाँ जहाँ बैठ जाती थी लगता था चिपक ही गई हैं साथ। देन दे आर एनीवेयर एल्स, वो कहता है ऐसे मैंने ऐसी मक्खियाँ और दुनिया में कहीं नहीं देखी जितनी इस टिपिकल डेजर्ट सिटी में गर्दाया में मैंने देखी, कि वो बहुत ज़्यादा स्टिकियर थी, बहुत ज़्यादा एडहीसिव थी, चिपकने वाली थी। और वो क्या बयान करता है इस शहर के बारे में? एनीथिंग दैट हैज़ द रिमोटेस्ट रिलेशनशिप विद फूड। रिमोटेस्ट ये थर्ड डिग्री है, डिस्टेंट कि जिसका दूर से भी को खाने पीने से ताल्लुक़ हो। क्रिस्टोफर स्टेट्स, क्रिस्टोफर बयान करते हैं, इज़ कॉन्स्टेंटली एंड कम्प्लीटली कवर्ड विद फ्लाइज। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका दूर से भी ताल्लुक़ हो कि ये खाने पीने की कोई चीज़ है, तो मक्खियाँ उसके ऊपर उसको कवर कर लेती थी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर, बल्कि वो चीज़ नज़र नहीं आती थी, मक्खियाँ ही नज़र आती थीं। दे हैव नो हेजिटेशन, हेजिटेशन मीन्स रिलक्टेंस, अनविलिंगनेस, उनमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। दे हैव नो रिलक्टेंस, दे हैव नो अनविलिंगनेस इन फॉलोइंग द फूड राइट इन टू योर माउथ। हाय हाय हाय, जैसे ही आप नवाला लेके, वो बता रहे हैं क्रिस्टोफर मुंह के पास लेके जाते थे, तो वो मक्खियां भी उस नवाले के साथ साथ ही मुंह की तरफ आती थीं। एंड आई हैड टू बी विजिलेंट, विजिलेंट मीन्स वॉचफुल, अलर्ट, मुझे बड़ा होशियार रहना पड़ता, मुझे बड़ा चौकन्ना रहना पड़ता। आई हैड टू बी वॉचफुल, आई हैड टू बी अलर्ट अंटिल ईच माउथफुल वॉज सेफली बिहाइंड माई टीथ, कि जब तक हर नवाला बाहिफाजत सेफली मेरे दांतों के पीछे यानी मुंह में नहीं चला जाता था, मुझे बड़ा होशियार रहना पड़ता था, कहीं मक्खियाँ तो नहीं साथ अंदर चली गईं। I saw many children on the streets, but I got only a vague idea. Vague मतलब मुबहम सा। I got only an unclear idea, or I got only an ambiguous idea of what they looked like. For all they wore a mask of flies. वो कहता है मैंने बच्चों को देखा गलियों में फिर रहे थे, तो मुझे वो बच्चे नहीं लग रहे थे, वो इस कदर मक्खियों से कवर हुए थे कि मक्खियाँ लग रहे थे। उनको बड़ा गौर से देखना पड़ता था, ये बच्चे मूव कर रहे हैं या कोई मक्खियों का छत्ता मूव कर रहा है। Here in this part of the paragraph, we'll discuss two questions. Number one, what type of truck was leaving for Algolia and what was it carrying? Very important question. Number two, how did the truck driver drive the truck on the trackless desert? He was able to continue his hitchhike. Hitchhike की आपको समझ आ गई होगी कि वो अब तक मुफ्त की गाड़ियों में, आसपास से जाती हुई गाड़ियों में लिफ्ट लेके सफ़र कर रहा है, और ये पूरा सफ़र ऐसे ही करेगा, इसलिए इसे कहते हैं हिचहाइक। टू द साउथ इन द लेजरली मैनर, leisurely means comfortably, easily. He was able to continue his hitchhike to the south in the leisurely manner that was so typical of the desert. और लोग भी, आम लोग भी वहाँ ऐसे ही लिफ्ट लेके ही सफ़र करते हैं। On the day of his arrival, he discovered that there was a truck due to leave at once at Algolia. तो वहाँ पता चला उसे कि एक ट्रक फौरी तौर पे अल्गोलिया रवाना होने वाला है। आपने याद रखना है, बाउसादा से वो जो उसका अगला
पड़ाव था, अगला स्टे था वो गर्दाइया था, तो गर्दाइया से फिर वो अलगोलिया जा रहा है, लेकिन अलगोलिया में भी रास्ते में उसे काफ़ी सारे वाक़यात पेश आएंगे, आपने उनको भी याद रखना है। सिर्फ शहरों के नाम और वहाँ पेश आने वाले वाक़यात ही याद नहीं रखने, रास्ते में भी बहुत सारे इसके साथ वाक़यात हुए हैं। आप फील करेंगे कि हर आने वाला वाक़या पहले से ज़्यादा खौफनाक है, पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है, पहले से ज़्यादा तकलीफदेह है। दिस ट्रक वॉज अ न्यू एंड पावरफुल वन। अभी तक जो ट्रक मिले थे उनमें सिवाय वो जो आर्मी की गाड़ी थी उसके अलावा बाकी तो ऐसा ही था। एंड कैरीड ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, उसमें हर किस्म का सामान मौजूद था। कौन कौन सा? ये डैश का मतलब होता है कि इस वर्ड की डिस्क्रिप्शन आगे है। उसमें क्या क्या था? पेन्स एंड नीडल्स, स्यूइंग मशीन्स, पॉट्स एंड पैन्स, मशीन पार्ट्स, इट वेड 10 टन्स। मैंने इसको इसलिए इसका डिफरेंट कलर कर दिया ताकि आपको याद रहे कि इसमें क्या क्या शामिल था। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। पेन्स एंड नीडल्स, स्यूइंग मशीन्स, पॉट्स एंड पैन्स, मशीन पार्ट्स, इट वेड 10 टन्स। इसका जो वजन था वो 10 टन के बराबर था। फॉर अबाउट 10 माइल्स, ये सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट्स हियर। For about 10 miles outside the town, the road continued. 10 मील तक तो जो सड़क थी वो जारी थी। Then it stopped. वो सड़क ख़त्म हो गई। The route lay across an apparently trackless desert. Apparently means आउटवर्डली, सीमिंगली, जो बज़ाहत दिखाई देता था। ये डिफरेंट कलर अब आपको पता चल गया होगा, ये भी आपकी MD-CAT वोकैबुलरी में शामिल है। इसके ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम और एंटोनिम्स इकट्ठे कीजिए। वैसे मैंने भी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से ज़रूर पढ़िएगा। The route lay across an apparently and outwardly a seemingly trackless desert. Nonetheless, the driver named Hantout, वो ड्राइवर जिसका नाम हैंटआउट था, picked his way, उसने अपना रास्ता लिया, यानी ड्राइविंग की with uncanny skill. अनकैनी मीन्स वेयर्ड, स्ट्रेंज, मिस्टीरियस, एक्स्ट्रॉर्डनरी। बड़ा ही कोई अजीब तरीका था, उसका अपना ही कोई तरीका था उसको चलाने का, गाड़ी को चलाने का, लेकिन वो उस मुश्किल सफ़र को उसने कर लिया। कुछ लोगों के पास अजीबोगरीब किस्म की वो स्किल्स होती हैं जिनको वो यूज़ करके तो अपना काम करते हैं। In this paragraph, we'll discuss one question: how did they manage to drive the heavy truck in the trackless desert with its soft sand? I must tell you, this is again one of the most important questions from the examination point of view. It was difficult traveling. At times, the sand became too soft to bear the weight of the heavy truck. It was then necessary to stop at once. If the wheels had been allowed to spin, they would have dug themselves deeper. आपने भी गौर किया होगा, जब गाड़ी किसी बहुत नरम जगह पे चल रही हो और वो रुक जाए वहाँ, अगर आप गाड़ी का एक्सीलेटर फिर भी दबाते रहें तो वो जो व्हील्स होते हैं उधर ही स्पिन होके बजाय आगे जाने के नीचे धंसना शुरू हो जाते हैं। तो सेम वॉज द केस विद दिस ट्रक। वहाँ बड़ी नरम सैंड थी, रेत थी, तो वो जब उसको चलाते तो वो गाड़ी आगे जाने की बजाय नीचे धंसना शुरू हो जाती रेत में। 10 फुट स्ट्रिप्स ऑफ स्टील मैश, मैश मीन्स नेट, तो 10 फुट स्ट्रिप्स जो पट्टियाँ थी धात की वो निकाली गई। वह ड्रैग्ड मीन्स पुल्ड, ड्रू फ्रॉम द ट्रक एंड प्लेस्ड टुगेदर to make a runway for the wheels to bite on as the truck moved. तो उनको क्या किया उन्होंने, वो लोहे की बड़ी बड़ी पट्टियाँ थीं, वो उनको जो उसके व्हील होते थे गाड़ी के उसके आगे रख देते और वो गाड़ी के व्हील उसके ऊपर जिस तरह रनवे बन जाती है तो उसके ऊपर वो आते और आगे वो चलना शुरू हो जाते। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बेटा, 10 फुट, या वैसे तो यहाँ फीट आना चाहिए था, 10 जो आ गया, लेकिन ये 10 फुट यहाँ फुट सिंगुलर है। उसकी वजह ये है कि स्ट्रिप्स ये नाउन है, तो यहाँ 10 फुट डिस्क्राइब कर रहा है स्ट्रिप्स को, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ 10 फीट की बजाय 10 फुट स्ट्रिप्स आया है। आई होप इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। When it reached harder ground, the strips were collected up and dragged forward to the waiting truck. जब गाड़ी आगे चली जाती तो वो ग्रीसर पीछे से, बल्कि क्रिस्टोफर ने भी उसमें मदद की उसकी, वो पीछे से वो पट्टियाँ उठाते और आगे उनको ले आते। क्रिस्टोफर परफॉर्म्ड यूजफुल सर्विस
in helping the greaser with this arduous means hard, laborious, difficult। बड़ा ही ये जो सख्त काम था इतनी गर्मी में, वो जो धात की बनी हुई ये जो पट्टियाँ थीं, जो स्ट्रिप्स थीं, ये भी बहुत गर्म हो गई होंगी, और इतनी गर्मी में बाहर ठहरना और लोहे को उठाना और फिर इतनी गर्मी में भाग दौड़ करना, ये इटसेल्फ बड़ा ही एक मुश्किल काम होता है। विद दिस हार्ड ऑपरेशन, विद दिस laborious operation, or with this difficult operation. Operation means process, action, activity. This different color shows that operation is also included in the MDCAT vocabulary. तो इसका भी आपसे मैं यही कहूँगा कि इससे जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स आप कलेक्ट कर सकें ज़रूर कीजिए, ताकि आपको बाद में जाके फिर इनको रटा ना लगाना पड़े, आपका टाइम भी बच जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में भी इसके मैंने सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए हुए हैं। There are 2 paragraphs here and we'll discuss 2 questions. Number 1, what did the driver of the truck tell Christopher about 3 Englishmen who had attempted to cross the desert? A very important question कि 3 Englishmen ने डेजर्ट को क्रॉस करने की कोशिश की थी, तो उनके साथ क्या फिर पेश आया वाकया, उनके साथ क्या हुआ। Question number 2, what happened to the goat skin bag? The driver added to the discomfort of the journey, discomfort, uneasiness, pain, तकलीफ, मुश्किल सूरत हाल। द ड्राइवर एडेड टू दी अनईजीनेस ऑफ द जर्नी, द ड्राइवर एडेड टू द पेन ऑफ द जर्नी बाई रिलेटिंग डिटेल्स ऑफ अ रीसेंट केस। रीसेंट केस के बारे में डिटेल बताते हुए उसने उनको बड़ा परेशान कर दिया, उनको अनईजी कर दिया, उनको बड़ी तकलीफ़ दी। इन विच, वो खैर वाक़या क्या था, इन विच 3 इंग्लिश पीपल हैड अटेम्प्टेड टू क्रॉस अ पार्ट ऑफ द डेजर्ट इन अ कार विद ओनली 1 डेज़ वाटर सप्लाई। उनको शायद अंदाज़ा नहीं था जब भी किसी सफ़र पे जाएं तो उसके बारे में जितने भी प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं आप पहले सोचें और उनके मुताबिक तैयारी करके जाएं। और वो तो फिर सहारा में जा रहे थे, तो उनके पास सिर्फ 1 दिन के पानी का इंतज़ाम था। देयर कार हैड बिकम स्टक इन अ सैंड ड्यून। ड्यून मीन्स हिल, माउंड, नॉल, टीले को कहते हैं। देयर कार हैड बिकम स्टक in a hill, their car had stuck in a mound, or their car stuck in a knoll, and 3 days later their bodies were found dried up like leaves। और 3 दिन के बाद वो उनके जिस्म ऐसे खुश्क हुए मिले थे जैसे कि खुश्क पत्ते हो गए हो। आप अंदाज़ा करें किस कदर गर्मी थी और जिसने उनको झुलसा के रख दिया, बिल्कुल वो पत्तों की तरह उनके जिस्म हो चुके थे। They had drained the radiator in their desperate thirst। डेस्परेट मीन्स सवेयर, सीरियस, इंतहाई शदीद गर्मी के आलम में उन्होंने रेडिएटर से भी पानी निकाल के पीने की कोशिश की। एंड वन ऑफ देम ट्राइड टू ड्रेन द ऑयल फ्रॉम द क्रैंक केस, और एक ने तो क्रैंक केस से ऑयल भी निकालने की कोशिश की। हैंड आउट हैड बीन वन ऑफ द सर्च पार्टी। वो उनको जो सर्च पार्टी करने गई उनमें ये हैंड आउट जो क्रिस्टोफर के इस व्हीकल का ड्राइवर था वो भी उनमें शामिल था, इसलिए वो अब उनको बता रहा था। And he spared his listeners none of the grim details। Grim means horrible, dark। और उसने अपने लिसनर को बिल्कुल भी डराने से बाज नहीं आया, उसको बहुत ज़्यादा खौफजदा कर दिया। तो क्रिस्टोफर भी बहरहाल किसी हद तक खौफजदा हुआ कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है। द स्टोरी केम विविडली क्लियरली। साफ तौर पर वो जो कहानी थी, द स्टोरी केम क्लियरली टू क्रिस्टोफर्स माइंड ऑन द सेकंड मॉर्निंग। क्या हुआ सेकंड मॉर्निंग, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द गोट स्किन बैग। द ग्रीसर अनाउंस्ड, ग्रीसर ने बताया दैट वन ऑफ द गोट स्किन बैग्स ऑफ वाटर हैड बर्स्ट ड्यूरिंग द नाइट, कि उनके पास जो गोट स्किन के बैग्स थे उनमें से एक जो था वो फट गया गर्मी की वजह से। अब बड़ा खौफ तारी हो गया उन सब पे। इवन इफ एवरीथिंग वेंट वेल द रेस्ट ऑफ द जर्नी वुड नॉट बी प्लेजेंट। तो क्रिस्टोफर ने सोचा कि अगर कोई और मिसहैप ना भी हो उनके साथ, लेकिन जो अगला सफ़र है वो उनके लिए खुशगवार नहीं होगा। That's all of today's lecture, dear students.
I hope you might have got the idea and understood all the questions and their answers and synonyms as well. और जो MDCAT vocabulary के words हैं उनके नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने डिटेल दी हुई है, तो वहाँ से आप ज़रूर पढ़िए और try to understand all the questions and their answers. If you find any problem, if you have any question, you may comment in the comment section. I'll be there to answer your questions. Till some next lecture, take a very good care of yourself and your dear ones. Thank you very much.